Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope my voice is absolutely audible to everyone. Inshallah, we are going to revise the complete paper of tomorrow with regard to the tips and techniques. And I am starting with the summary writing question. As you can see on the screen, that it's a question which carries 25 marks. This question carries 25 marks and it has two parts. The first part can contains 20 marks. It carries 20 marks. This is the most important part. And the second sub part, which is 3B, carries just 5 marks. You people are very lucky as far as the students of 1, 1, 2, 3 are concerned. If you will remain calm, if you will follow the instructions which I am going to share, nothing can stop you from achieving A or even A star. The only important thing that you have to keep in mind is stay calm and don't be overconfident. Next important instruction is read the question very carefully. Tomorrow is your reading paper. The most important thing you have to remember, it's a reading paper. So in reading, you have to read more attentively than writing. Writing is second step. First step is reading. So first read the question carefully. First read the passage carefully. Demand of the question and demand of the examiner को understand करें and then start writing the answer. And as far as the time management is concerned, complete 1 hour should be spent on each of the two questions. Not that in 1.5 hours you wind up the paper in hurry and come outside. That will be great cruelty with this paper. Cambridge has assigned 2 hours time, so even 1 minute must not be wasted in hurry or in the effort to go outside. I hope this major point is clear. Now, these are the assessment objectives of summary. I don't want to discuss them in too much detail. The major thing that you need to keep in mind is that this question will be assessed both for reading as well as writing. Reading में क्या चीज वो assess करेंगे कि if you have read the text carefully, if you have underlined the 10 content points, 8 to 10 content points, not necessarily that you are able to find only 10, you can even find 8 content points. And if you are able to find them through reading, that will be an assessment of reading, that you have got full marks in the reading assessment criteria. As far as the writing assessment criteria is concerned, the rules are the same as you followed in narrative essay or descriptive essay. And what are those rules? I will be discussing them in detail. But the most important thing is, my dear students, that your language abilities are strong. You do use connectors and you do link the ideas. The broken phrases or broken sentences impact must not be created. The more you will be focused, the more your content points will be joined, the better marks you will get in this question. This is the summary of this slide, which I have explained in my own words. These are the 7 stages of planning and writing a summary in your notebooks. If you are noting down what I am writing, what I am speaking in front of you, briefly, you can write down what I am uttering before you. Number 1 question, the step is that scan, read the text. Scanning means deep reading, not superficial. Scanning means read under the surface very, very carefully and with maximum full concentration and form an overview of the text. Try to find out what the text is about. The question will also tell you what the question is, what the text is about. There are certain texts in which there is one focus strand. There are others in which there are 2 focus strands. मतलब क्या है इस बात का, एक फोकस स्टैंड और 2 फोकस स्टैंड का, कि देयर माइट बी अ पैसेज इन विच यू आर जस्ट आस्क्ड टू टॉक अबाउट वन थिंग. वो 1 फोकस स्टैंड हुआ. जिसमें आपसे 2 चीजें डिमांड की जाएंगी, वो 2 फोकस स्टैंड्स होंगे. इफ यू आर डिमांडेड 2 फोकस स्टैंड्स क्वेश्चन, तो आप 2 पैराग्राफ्स में भी आंसर लिख सकते हैं. अदरवाइज यू कैन सिंपली राइट इन 1 पैराग्राफ. देयर इज नो डिडक्शन ऑफ मार्क्स इन मेकिंग 2 पैराग्राफ्स और 1 पैराग्राफ, बट 90% preference
preference is that you write one paragraph for summary so that it is more organized and it has more linking. Even if you have advantages and disadvantages in the middle of your summary by writing a contrasting connector, like however, you can start your disadvantages, you can start the negative aspects, whatever the other side of the picture is, you can start with that. The second step is read the text carefully and circle keywords. Keywords will be, my dear student, those words with which you try to find out synonyms. Obviously, you will not be rephrasing each and every word. Even the examiner allows you to use the specific nouns as it is. स्पेसिफिक नाउन्स का क्या मतलब है कि अगर आपकी समरी का टॉपिक मैमथ्स है, फॉर एग्जांपल मैमथ्स के बारे में आपको समरी दी जा रही है, तो even if you repeat the word mammoth in your summary, marks will not be deducted because it was a specific noun. Specific noun का synonym देने की जरूरत नहीं है because it will be a wastage of words and how much effort you might try. आपका synonym exactly mammoth का synonym नहीं बन सकता because mammoth is a typical kind of elephant. In the same way, if it is about any other topic, लेकिन इसमें important चीज करनी क्या, एग्जामिनर देखेगा क्या कि आपने अपनी समरी में 50 दफा मेहमत का वर्ड तो नहीं चूज कर लिया. हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिपीटेड इट. सो रेपिटेशन ऑफ द प्रोनाउन और स्पेसिफिक प्रोनाउन और स्पेसिफिक नाउन कैन बी एंड शुड बी अवॉइडेड. अभी मैं आपको एंड पे सैंपल्स भी दिखाऊंगी. 2 सैंपल्स आई विल बी शेयरिंग अ ड्राइव विद यू इन विच आई हैव शेयर्ड सम वेरी प्रेशियस डॉक्यूमेंट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट and I have worked really hard upon them. Some of those documents I have even shared in my videos regarding the passage of North Shore. I hope you would have watched that video. उसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना because उसमें एक एक क्वेश्चन लेटेस्ट टाइप की टेक्निक का डिटेल में डिस्कस किया है, कॉम्प्रीहेंशन का. Okay, my dear student, the third point is skim read the text looking for relevant content points. अब आपने पहली दफा कीवर्ड अंडरलाइन किए, सेकेंड टाइम आपने कंटेंट पॉइंट्स अंडरलाइन किए और यू कैन लिस्ट देम इन नोट फॉर्म ऑन योर नीट आंसर पेपर. ये इंपॉर्टेंट बात है. आपने सैंपल आंसर्स, सैंपल एग्जाम्पल कैंडिडेट रिस्पॉन्सेज अगर आप डाउनलोड कर लें 1 1 2 3 के, तो यू कैन सी के ऑन द नीट पेपर द स्टूडेंट्स डू ऑल द रफ वर्क. सो यू कैन नोट डाउन योर रफ कंटेंट पॉइंट्स ऑन द नीट आंसर पेपर using key phrases, not whole sentences, as short as you possibly can. उसके बाद ओरिजिनल टेक्स्ट को आपने साइड पे कर देना है. दोबारा इफ यू केप्ट द ओरिजिनल पैसेज इन फ्रंट ऑफ यू, तो डिसएडवांटेज विल बी कि आपके पास repetition of the words used in the text will be there. So you have to avoid repetition, you have to avoid the impression of wholesale copying. ये most important चीज है समरी में. Next point, my dear students, समरी के steps की stages में है synthesize similar point. सिंथेसाइज का मतलब है ज्वाइन कर लें. अब जहां पर बहुत सारे सब बच्चे ये सवाल पूछते हैं कि मिस हम ऑर्डर ऑफ कंटेंट पॉइंट चेंज कर सकते हैं, तो ये पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैंने खुद नहीं बनाए. आई हैव टेकन देम फ्रॉम ऑथेंटिक रिसोर्सेज ऑफ कैम्ब्रिज. तो कैम्ब्रिज आपको खुद कह रहा है कि सिंथेसाइज करो सिमिलर पॉइंट्स को. अब हो सकता है पॉइंट नंबर 4 और 7 सिमिलर हो तो ज्वाइन कर लो, 1 और 5 सिमिलर हो ज्वाइन कर लो. ऑर्डर अब जहां पर आप चेंज कर रहे हैं नो प्रॉब्लम, चेंज करेंगे आप. इसी चीज को तो उसने देखना एग्जामिनर ने कि आपने लिंकिंग कितनी स्ट्रॉन्ग की है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है. दिस इज व्हाट दे आर गोइंग टू सी. क्रॉस आउट रेपिटेटिव पॉइंट्स. अब आपने पेंसिल से जहां आपको फील हो कि आपने कोई पॉइंट रिपीट कर दिया है, कट कर दें, रेपिटेशन को इवेड करते हैं. आई होप अप टिल नाउ दिस थिंग्स, these 4 points are clear. उसके बाद हमारे पास 3 more steps हैं of summary और उसके बाद I will come to the sample. See whether your points are in the best order. If not, reorganize them for coherent summary. समरी की क्वालिटी क्या होनी चाहिए? लॉजिकल होनी चाहिए समरी, इंटरलिंक्ड हो, बात से बात निकले, डिसकनेक्टेड और डिसजॉइंटेड ना हो. अगर आपको फील हो रहा है कि अभी भी लिंकिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ऑर्डर ऑफ द कंटेंट पॉइंट्स एक दफा फिर चेंज कर लें बिकॉज आपके पास 1 आवर है. आईजीसीएसई के स्टूडेंट्स के पास समरी के क्वेश्चन के लिए सिर्फ 20 मिनट्स हैं, आपके पास 60 मिनट्स हैं. तो इमेजिन हाउ मच एक्सपर्टीज
expertise you need to show. अब आप खुद अंदाजा लगाएं. Keep the text aside. Point number 6 very important है. Keep the text aside. अभी मैंने आपको बताया भी, original text should not be in front of your eyes now. What should be there in front of your eyes? The content points, the phrases, the small content points, the key phrases which you have jotted down on your neat answer sheet. अगर आप कहते हैं कि भाई आप आखिरी दिन हमें कह रही हैं कि नीट आंसर शीट पे ये काम करना है, पहले तो नहीं हमने किया, तो नो प्रॉब्लम, आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर अंडरलाइनिंग की हुई है और आप अंडरलाइनिंग की बेस पे ये करना चाहते हैं लिंकिंग, तो ऐसे कर लें, no problem. But if you will do it on the neat answer paper, it will be more convenient and it will be more helpful. Now using your notes, write summary in full sentences. Now is the test of joining the content point in the form of sentences. Sentences के बारे में आपको बहुत clearly ये बात मैं पहले अपनी videos में भी बता चुकी हूँ summaries में कि not only simple sentences. If you will just write simple sentences without compound and complex, तो आप सोचिएगा बिना कि आपके समरी में अच्छे मार्क्स आएंगे. समरी में अच्छे मार्क्स लेने के लिए 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड. नंबर 1, फोकस ऑफ द क्वेश्चन. नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन. एंड नंबर 3, यूजेज ऑफ सिमिलर आइडियाज. यूजेज ऑफ आइडियाज with the usage of synonyms. ये थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है. Change things into your own words if easy to do, but use words from the text. If changing them, utilize more words. अगर आपको फील होता है कि एक वर्ड का सिनोनिम बनाते बनाते 7 मिनट यूज कर देने हैं, 10 मिनट वेस्ट कर देने हैं, 5 मिनट्स वेस्ट कर देने हैं, तो बेटर यूज द वर्ड. वो कहता है कंटेंट पॉइंट का नंबर लूज ना करो. इस टेंशन में कि सिनोनिम नहीं आता था मिस, इसलिए मैंने कंटेंट पॉइंट भी नहीं लिखा, ये गलती नहीं करनी. डोंट मिस द पॉइंट ऑफ कंटेंट पॉइंट. इफ you think that you can write down the content point by using that word without changing it into synonym, there is no problem with that. यूज कर लें, लिख लें, पॉइंट लिख के जरूर आए. मैक्सिमम यही होगा ना कि ओन वर्ड्स के पोर्शन में से थोड़े से नंबर कट जाएंगे, लेकिन कंटेंट पॉइंट्स में तो आपके मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे ना. एंड द मोस्ट एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज प्रूफ रीडिंग, विच इज मैंडेटरी टू चेक द फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ आंसर. और एक्यूरेसी में 3 थिंग्स which we have already talked about in our preparation of P2 SPG: spellings, punctuation and grammar. Punctuation, not only comma and full stop, semicolon must be used. Linking devices should be used appropriately with the help of comma, semicolon एंड फ्लुएंसी. फ्लुएंसी का मतलब है कि आपके बात से बात निकले एक सेंटेंस के अंदर मैक्सिमम यू कैन राइट 3 कंटेंट पॉइंट्स, मिनिमम यू कैन राइट 1, लेकिन 1 कंटेंट पॉइंट वाला आपके पास 2 से ज्यादा सेंटेंसेस होना डिजास्टरस है. मैक्सिमम यू कैन राइट 1, इससे ज्यादा 2 कर लें, चलें. मैक्सिमम आई कैन अलाउ यू टू राइट 2 sentences ऑफ सिंपल टाइप एंड देन 3 और 2 आपके पास कंपाउंड सेंटेंसेस आ जाएं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपके जितने ज्यादा होंगे डिपेंडिंग अपॉन द वर्ड लिमिट, दैट इज द बेस्ट थिंग. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब इस वक्त रह गया कि बेटा हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू फॉलो द वर्ड लिमिट. तो इससे रिलेटेड मैं बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आपको देती हूँ कि मस्ट follow the word limit as accurately as possible. मतलब ये है कि जितना मुमकिन हो सके, लेकिन पेपर में 1 2 3 4 5 6 लिख के पेपर पे वर्ड्स काउंट करने ना बैठ जाना. इट विल क्रिएट अ वेरी स्टूपिड इंप्रेशन ऑफ द टीचर एंड ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज you should have enough practice. You should know how many words you write per line, और उसके अकॉर्डिंग आपने वहां पे जस्ट लाइंस काउंट करनी है. अगर फॉर एग्जाम्पल यू राइट 10 वर्ड्स पर लाइन, तो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी लाइंस यू राइट need to write in order to make a score of 150. Obviously 15 lines you will write. तो ये एक रफ एस्टिमेशन बताया. अगर आप 8 वर्ड्स लिखते हैं पर लाइन, तो यू कैन काउंट हाउ मेनी लाइंस यू नीड टू राइट इन ऑर्डर टू अचीव द स्कोर ऑफ 150. Similarly, you can count according to the number of words per line. I hope this is clear, but we are going to move forward. इसमें आप देखें कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की बात हुई है. आपने मेरी वो वीडियो जरूर सुननी है about the type of sentences, those students who are weak in their sentence structure.
सिंपल सेंटेंसेस मैंने आपको अलाउ किया है पूरी समरी में मैक्सिमम 2 और एक्सीलेंट स्कोर के लिए 1 ही काफी है। और उस जगह पे लिखिएगा जहां पे आप समझते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पॉइंट है, इसको मैं इंडिविजुअल वेटेज देना चाहता हूं, इसलिए इसको मैं एक ही सेंटेंस में लिखूंगा। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस में आपने क्या चीज यूज करनी होती है, ये वाले कनेक्टर्स जैसे एंड बट सो है, ये तो बोरिंग वाले हैं, इनकी जगह पे आपने एडिशनली, मोर ओवर, अच्छे वाले कनेक्टर, अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ कनेक्टर्स की, आपके पास वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है और उसकी वर्कशीट भी है उसी वीडियो में, यू कैन नोट देम डाउन। अदरवाइज जो मोस्ट इसेंशियल हैं ये हैं, दीज आर द मोस्ट इसेंशियल, इनका आप जरूर स्क्रीनशॉट लें। ये मेरा बेटा सिमिलैरिटी के हैं जिनके ऊपर इस वक्त मेरा कर्सर मूव कर रहा है, सिमिलैरिटीज, लाइक वाइज, बिसाइड्स, एडिशनली, फर्दरमोर। ये जब आपने एक के बाद दूसरा कंटेंट पॉइंट सिमिलर वाला लिखेंगे तो देन यू विल यूज ईदर ऑफ दीज। इनके करेक्ट स्पेलिंग्स याद कर लीजिएगा। जब कनेक्टर लिखें कॉमा डालना ना भूलें। मैं अपने स्टूडेंट को पिछले 3 साल से ये बात बता रही हूँ, आप देखते हैं कि कल इनको मेरी बातें याद रहती हैं कि नहीं। और ये मेरा बेटा जिसके ऊपर नाउ माई कर्सर इज मूविंग, ये आपके हैं कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर्स। जब आपकी बात का एंगल चेंज होगा तो यू विल यूज ईदर ऑफ दीज, इनमें से कोई एक यूज करेंगे। इन सारे कनेक्टर्स में अगर आप नोट करें तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे 1 वर्ड कनेक्टर हैं। मैंने ऐसा कोई कनेक्टर आपको दिया ही नहीं जिसमें 3 वर्ड्स आए। जैसे मैं लिख सकती थी ना ऑन दी अदर हैंड, देखो मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ है, इसमें मैं लिख सकती थी ना इन एडिशन, नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? इसलिए कि आई वॉन्ट टू सेव योर नंबर ऑफ वर्ड्स। कैम्ब्रिज पसंद करता है कि आप वर्ड लिमिट को, इंस्ट्रक्शंस को एक्यूरेटली फॉलो करें। ये मेरी बात आई होप क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट लें। ये कनेक्टर्स कल आप इंशाल्लाह पेपर में यूज करेंगे और दुआएं देंगे। उसके बाद मेरा बेटा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, आप में से हो सकता है कोई बच्चा पूछे कैसे लिखते हैं, तो मैं बहुत ब्रीफली आपको बता देती हूँ कि अगर आप इनमें से किसी एक वर्ड से अपना सेंटेंस शुरू करेंगे तो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। ये कौन से वर्ड्स हैं? इनका बेटा मेरे नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब है कि ये ऐसी कंजंक्शन है जो कि इंडिपेंडेंट खड़ी नहीं हो सकती, इसको किसी के सहारे की जरूरत है। इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज इन ऑर्डर टू मेक अ, यू कैन से, कंप्लीट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें। जब आप इनमें से कोई एक यूज करेंगे, जैसा कि आपने वाइल का कनेक्टर यूज किया था, वाइल की सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज की थी अपने डायरेक्टेड राइटिंग में, इवेल्युएशन की फ्रेज में, तो आपको याद होगा कि आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया था। इसी तरह से इनमें से आप जोन सा भी वर्ड यूज करेंगे एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, यू विल बी एबल टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। अब मेरा बेटा जी 7 चीजें हैं जिनको आपने कहना है ये चेक लिस्ट है, ये मिस्टेक नहीं करनी। That is why I have made it this slide with red color. Number 1 is कि आप focus of the task ही भूल जाएं, आप नरेट करना शुरू कर दें। आई आ गया बीच में, यू आ गया, अपनी बातें लिखनी शुरू कर दी। बच्चे इतनी स्टूपिड मिस्टेक इस क्वेश्चन में ये भी करते हैं कि वो अपनी ओपिनियन इस पार्ट में देना शुरू कर देते हैं। मेरा बेटा ये तो समराइजेशन ऑफ द टेक्स्ट है, इसमें नो पर्सनल ओपिनियन, नो आई एंड नो यू। फोकस ऑफ द टास्क मस्ट नॉट बी डिविएटेड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है। उसके लिए आप क्या करेंगे, अपने आप को अलर्ट पे रखने के लिए बार बार क्वेश्चन पढ़ें व्हाइल अंडरलाइनिंग द कंटेंट पॉइंट। टैली कर लें कि मैंने जो कंटेंट पॉइंट्स अंडरलाइन किए हैं वो फोकस ऑफ द टास्क के अकॉर्डिंग है, डिविएशन तो नहीं की, ये आपने जरूर चेक करना है। दूसरा है जी भी रिलाइंग टू हैवीली ऑन द ओरिजिनल टेक्स्ट, ये सेकंड मिस्टेक हो सकती है। अगर आपने पैसेज ऑफ द समरी टेक्स्ट में से चंक्स उठाए, टुकड़े उठाए, लाइन्स उठाई, फ्रेजेस उठाई, तो एग्जामिनर कैन नॉट बी फूल्ड इजीली। दैट टू विल बी अ रेड मिस्टेक। रिपीटिंग सिमिलर आइडियाज, repetition of any kind is a bad thing, whether repetition of words or phrases or content points. No repetition will be the third checklist point. Number 4, showing a lack of organization in writing. अगर आपके बार बार सिंपल सेंटेंसेस आ रहे हैं, डिसजॉइंटेड हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, सेमीकोलन, कोई ख्याल नहीं रखा हुआ, तो आप समझें कि आपकी समरी में ऑर्गेनाइजेशन की शदीद कमी है। नंबर 5, excessively usage of boring conjunctions like and, but, so,
और इसमें आप ऑल्सो भी वर्ड यूज कर सकते हैं। इस वक्त मुझे अपने उन स्टूडेंट्स की बात याद आ रही है जो बच्चे जिनका मैंने रेगुलर काम चेक किया फॉर 3 years, वो मुझे कहते हैं मिस आपको ऑल्सो के साथ क्या मसला है। बिलीव मी, स्टूडेंट्स मुझे ये कह देते हैं, इतना ज्यादा ये इस सवाल में मैं सर्कल करती हूँ। हो सकता है कैम्ब्रिज का एग्जामिनर आपका इतना ये बुरा ना मनाए, लेकिन मुझे पता है कि ए स्टार जिन बच्चों का आता है वो ये वर्ड्स यूज नहीं करते। एंड बट सो ऑल्सो दीज आर फॉरबिडन एट योर लेवल। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, आपने मेच्योर वाले कनेक्टर यूज करने हैं जिनके ऊपर अभी आपको थोड़ी देर पहले स्लाइड दिखाई है। राइटिंग वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस विद लिमिटेड आइडिया, छोटे छोटे जर्की आइडियाज वाले सेंटेंसेस लिखते जाएंगे, बार बार सेंटेंस के एंड पे फुल स्टॉप आ रहा है तो ये भी एक सीरियस मिस्टेक है। और अगर आप इतना लंबा सेंटेंस लिख देते हैं और इतनी लंबी समरी लिख देते हैं, 150 को बहुत ज्यादा क्रॉस कर दिया है। तो मेरा बेटा यही इंस्ट्रक्शन 0500 IGCSE के बच्चों के लिए भी हैं। एज फार एज द समरी क्वेश्चन इज कंसर्न, उनके पास ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, आपके पास 20 का है। उनके पास ओपिनियन क्वेश्चन नहीं है, आपके पास है। मैं अभी आपको 2 मिनट्स की ब्रेक के बाद ओपिनियन का क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। और अगर आपको इसमें से कोई बात समझ नहीं आई तो आपके पास कॉन्टेक्ट नंबर मैंने जो शेयर किया हुआ है 0333466007, उस पे आप कमेंट लिख के मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। अगर नंबर समझ नहीं आया तो मैं चैट में लिख के दे रही हूँ, उस पे आपको इम्पोर्टेंट सवाल अभी तक जो आपको समझ नहीं आया वो पूछ सकते हैं। और अब मैं आपके साथ 2 मिनट्स की ब्रेक के बाद बात करती हूँ। आई एम कंटिन्यूइंग विद the opinion question of summary writing. My dear students, I am continuing with the opinion question of summary writing, as I have already told you that this question carries 5 marks, and a very useful video also I have made on that, but in this part I will try to explain it briefly as to what it is. ओपिनियन क्वेश्चन में मेन बात आपने ये याद रखनी है कि ओपिनियन में इम्प्लिसिट मीनिंग फाइंड आउट करना है, एक्सप्लिसिट मीनिंग नहीं। अब आप में से हो सकता है देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स हु डोंट नो व्हाट इज एक्सप्लिसिट एंड व्हाट इज इम्प्लिसिट। दीज आर द टू बेसिक की टर्म्स व्हिच यू नीड टू नो एंड अंडरस्टैंड। व्हाई? बिकॉज आपके कॉम्प्रीहेंशन में 16 मार्क्स का पोर्शन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट के बारे में है। ठीक है, अब ब्रीफली आपको बताती हूँ। जब हम कॉम्प्रीहेंशन स्टार्ट करते हैं तो आई विल अगेन रिपीट इट। एक्सप्लिसिट माय डियर स्टूडेंट मीन द सुपरफिशियल, द सरफेस लेवल ऑफ थिंग्स, यानी जो ऊपर का मीनिंग है। और इम्प्लिसिट मीन्स हिडन मीनिंग। आपके कॉम्प्रीहेंशन में अगर आपको इम्प्लिसिट का मीनिंग आता है, सजेस्टेड का मीनिंग आता है, और अगर आपको इम्प्रेशन का मीनिंग आता है, इफेक्ट का मीनिंग आता है, ये 4 टर्म्स हैं इम्प्लिसिट के लिए और एक्सप्लिसिट के लिए जस्ट सरफेसरी है। तो आप समझे कि आपके कॉम्प्रीहेंशन में फुल मार्क्स आएंगे अगर आपने वोकैबलरी अच्छी तैयार की हुई है। और उसके लिए क्रूशियल वोकैबलरी की वीडियो मस्ट वॉच करें, उसमें मैंने लास्ट 5 years के पेपर्स के इंपॉर्टेंट वोकैबलरी के वर्ड्स अंदर से निकाल के आपके साथ मीनिंग शेयर किए हैं मार्किंग स्कीम में से। तो वो दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट रिवाइज। ठीक है, तो इसमें आपने मेन पॉइंट मैंने क्या बताया कि कैंडिडेट्स गिव अ शॉर्ट रिस्पॉन्स टू शो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्प्लिसिट मीनिंग एंड एटीट्यूड इन रिस्पॉन्स टू टेक्स्ट बी। अब आपने हिडन मीनिंग के अकॉर्डिंग इस सवाल का जवाब देना है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि केयरफुल रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन करें, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। The students should determine the purpose, intended audience and perspective they should adopt in their response. आपने ये जरूर सोचना है कि आपसे ये ओपिनियन ली क्यों जा रही है, आपसे ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या आप हट के सोच सकते हैं। यानी हर बंदे के साथ एग्री करना तो आसान है, लेकिन डिफरेंट ओपिनियन देना जो है वो एक समझदार बच्चे का काम है। तो व्हेन यू विल अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन। और आपने ये जरूर सोचना है कि आप एड्रेस किसको कर रहे हैं इस सवाल के जवाब में। आपका रोल चेंज होता है ओपिनियन के क्वेश्चन में। व्हाई एंड हाउ? फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाएगा कि यू आर द होटल ओनर,
आपसे कहा जाएगा कि यू आर फॉर एग्जाम्पल द एडिटर ऑफ सम न्यूज़पेपर, या आपसे कहा जाएगा कि आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है बिकॉज यू आर एन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी। अब आपने याद रखना है ये बात कि योर रोल हैज चेंज, एंड जब आपका रोल चेंज होता है तो मेरा बेटा आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहती हूँ कि अपने फादर की एक्टिंग करनी है आज आपने, नाउ व्हेन यू विल अडॉप्ट द रोल ऑफ योर फादर, तो ऑब्वियसली आप थोड़े मेच्योर वे में बात करेंगे, आप इमेच्योर हरकतें और बातें नहीं करेंगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो जाएगा। तो यही बात आपने इस क्वेश्चन में माइंड में रखनी है कि चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, पर्पस ऑफ द क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, डीपर मीनिंग निकालें और अपनी ओपिनियन को वेरीफाई जरूर करें। वेरीफाई करने का मतलब है आपने सिर्फ ये नहीं कहना कि मुझे चॉकलेट बिस्किट पसंद है, ये आपकी ओपिनियन है, आई लाइक चॉकलेट बिस्किट्स, यू हैव टू टेल द रीजन व्हाई यू लाइक चॉकलेट बिस्किट्स, and not only simple reason, logical reason, 3 to 4 if you will write with complete development तो आपके 5 out of 5 मार्क्स आएंगे। अगर आप 4 लॉजिकल रीजंस डेवलपमेंट के साथ लिख देते हैं तो यू कैन राइट, यू कैन गेन 5 मार्क्स कंप्लीट। ऑफर अ कंसिस्टेंट एंड रेलेवेंट पर्सपेक्टिव, इस बात का क्या मतलब है, आपने जब बात शुरू की है आपने कहा कि जी मैं इस बात के फेवर में हूँ, तो थोड़ी देर बाद आपने ये नहीं कह देना कि मुझे चॉकलेट बिस्किट तो पसंद है लेकिन मुझे वनीला फ्लेवर भी पसंद है, ऐसे नहीं करना। योर चॉइस, योर ओपिनियन विल रिमेन कॉन्सिस्टेंट टिल द एंड ऑफ द आंसर। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद रखनी है, क्योंकि बंदा बार बार अपनी राय चेंज नहीं करता, और स्पेशली जब आपसे एक इंपॉर्टेंट सीट पे बैठ के आपसे कोई राय दी जा रही है तो देन यू कैन नॉट चेंज योर ओपिनियन अगेन एंड अगेन। The opinion you offer should be developed and supported with evidence from the text। जो ओपिनियन आप देंगे आपने ये शो करना है कि आप हवा में बातें नहीं कर रहे, आपने ये टेक्स्ट रीड किया हुआ है, आप एविडेंस बेस्ड बात कर रहे हैं। अगर आपको टेक्स्ट में से एविडेंस मिल जाती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलती तो आपने अपने दिमाग से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अपनी कॉमन सेंस से खुद भी बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा कोशिश करनी है कि एविडेंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट हो। गिव लॉजिकल रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। आपने जब बात करनी है तो उसको वेरीफाई करना है थ्रू रीजन एंड लॉजिक। द पर्सपेक्टिव शुड बी मेंटेन्ड सक्सेसफुली टिल द एंड ऑफ द आंसर। ये नहीं कि शुरू में यस, दरमियान में नो, फिर एंड पे यस, ऐसे नहीं। यू हैव टू रिमेन स्टक ऑन योर पर्सपेक्टिव। दिस इज द सैंपल आंसर ऑफ 2024 स्पेसिमन पेपर। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और आपने इसमें मेन बात ये याद रखनी है कि क्वेश्चन पेपर पे आपको इस सवाल में 5 लाइंस दी जाएंगी, तो प्लीज डू नॉट प्लान राइटिंग ऑन टिल द बॉटम ऑफ दैट पेज। आपने 5 लाइंस में ही अपना आंसर लिखना है, मैक्सिमम मैक्सिमम यू कैन ड्रॉ 1 लाइन इफ a few words are left in order to complete that sentence। आप ये देखें कि इस आंसर को अगर आप अपनी हैंड राइटिंग देखें, आपने अपनी राइटिंग का साइज जाइंट साइज नहीं रखना, ना ही माइक्रोस्कोपिक एंट लाइक साइज रखना है। इट शुड बी अ मीडियम साइज हैंड राइटिंग, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन के पेपर में, समरी के पेपर में टाइम मैनेजमेंट, स्पेस मैनेजमेंट, वर्ड लेंथ रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब आप देखें मेरे साथ ये सवाल पढ़ें कि वो क्या कह रहा है कि सम लोकल पीपल थिंक दैट योर ट्री होटल माइट हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट। अब आप जी ओनर हैं ट्री होटल के, आपका रोल चेंज हो गया, यू हैव बिकम नाउ अ रिच पर्सन, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर ओपिनियन इस क्रिटिसिज्म के ऊपर। कि क्या है क्रिटिसिज्म, कि जी आपका जो होटल है वो नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है फॉरेस्ट एनवायरनमेंट पे। इसी तरह से मेरा बेटा आपके पास 5 सैंपल क्वेश्चन हैं ओपिनियन के, इसको अनइम्पॉर्टेंट ना समझें। 5 मार्क्स इज नॉट अ वेरी मिनिमम स्कोर। अगर आप इसकी 5 मार्क्स की तैयारी के लिए वीडियो सुन लेंगे, उसमें मैंने आपको 3 सैंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 का आंसर है, तीसरे का आपने खुद ट्राई करना है, तो योर प्रेपरेशन विल बी कंप्लीट इंशाल्लाह। नेगेटिव डेफिनेटली नॉट। अब आप देख रहे हैं क्लियर पर्सपेक्टिव, उसने कहा मेरे होटल से फॉरेस्ट एनवायरनमेंट खराब हो रही है, नो 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 वे। अब आप देखिए क्लियर स्टैंड पॉइंट,
clear perspective. Without the tree hotel, the trees would have all been cut down for logging. So we are actually maintaining the forest ecosystem for future generations. अब आप देख रहे हैं कि इसने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा है, कंप्लीट लॉजिकल एविडेंस बेस्ड बात की है, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एनहेंस किया है। तो इस तरह से आपने सिर्फ ये नहीं कहना आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस, आई डोंट लाइक दिस, आई एम द ओनर ऑफ द, छोटे छोटे जर्की सेंटेंसेस, वी डोंट हैव एनी लॉजिकल ओपिनियन, दे विल नॉट बी अवॉर्डेड गुड मार्क्स एट ऑल। अगला पॉइंट आप देखें वो क्या कहते हैं, वी हैव मेड बिग एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। वो कहता है हमने वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए भी स्टेप्स लिए हुए हैं। लुक एट द फिल्म आई यूज टू प्रिवेंट बर्ड फ्रॉम फ्लाइंग इनटू द मिरर क्यूब, दिस इज एविडेंस बेस्ड ऑन द टेक्स्ट। मोर ओवर नेक्स्ट डेवलपमेंट पॉइंट है, कनेक्टर हमेशा यूज होते हैं, हर जगह पे यूज होते हैं। आवर ट्री हाउसेज आर डिजाइंड टू ब्लेंड इनटू द फॉरेस्ट एज इफ दे आर पार्ट ऑफ नेचर। अब आप देखें इसमें बेसिकली टोटल 4 सेंटेंसेस हैं। वन, फर्स्ट सेंटेंस फिनिशेस हियर, 2, 3 एंड 4। लेकिन इसमें फुल कंप्लीट ये सैंपल आइडियल आंसर है गिवन बाय कैम्ब्रिज एग्जामिनर, सो इट मींस दैट यू आर आल्सो सपोज्ड टू राइट सिमिलर काइंड ऑफ आंसर इन द न्यू मार्किंग स्कीम्स। They have shared a lot of ideas where the student can develop his opinion on similar grounds. So you must go through them. If you think कि आपका opinion question strong नहीं है, तो बेटा 25 मार्क्स का समरी का क्वेश्चन है। समरी में भी यू कैन ऑब्टेन 18 to 19 मार्क्स अगर आप बहुत अच्छा समरी की तैयारी कर लेते हैं। आई विल शेयर यू द सैंपल। मैंने नॉर्थ शोर वाले पैसेज के साथ समरी का पैसेज का सैंपल भी शेयर किया हुआ है, वो जरूर देखें। एंड इन द सेम वे ओपिनियन के क्वेश्चन में टारगेट करें कि मैंने 4 से नीचे नहीं जाना। 4 पॉइंट्स नहीं मैं दे सकता, मैं 3 पॉइंट्स दूंगा बेशक, लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस बेस्ड वेरिफिकेशन के साथ, लॉजिकल थिंकिंग के साथ, सोच समझ के बात करूंगा। अपना स्टैंड पॉइंट जो मैं बनाऊंगा वो मैं टिल द एंड मेंटेन करूंगा।